Hi guys, today we will discuss work power energy for ICC 10th. Students, here work. Now, what is work? Work is said to be done when a body gets displacement in the direction of force applied. Clear? कि work is said to be done. यहाँ पे देखो एक बॉडी जो इमेज लिया, इस बॉडी को भी यहाँ जो डिस्प्लेस करना है, क्या बॉडी को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, बॉडी को अगर सपोज ए प्लेस से बी प्लेस पे ले जाना है तो क्या करोगे? इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये फोर्स जो अप्लाई होगा ये क्या करेगा? इसके कॉन्सेप्ट को समझो। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई एम मास की कोई बॉडी है, जब इस पे फोर्स अप्लाई होता है तो मीन्स क्या लगेगा? ये बॉडी एक्सीलरेट होगी, एक्सीलरेट होगी तो बॉडी वेलोसिटी गेन करेगी, और वेलोसिटी गेन करेगी तो बॉडी क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट जो है गेन कर लेती है। क्लियर करो, इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना। मीन्स इफ अ बॉडी ऑफ मास m kept at place A, when force F is applied on it, it accelerates with this force and then gain a velocity, and after this velocity it will displace through a distance s. Clear? According to definition of work done, the work is said to be done when a body gets displacement in the direction of force applied. So here in this case, work done is equal to force into displacement. Clear? Means in other words, force is work done is defined as the product of magnitude of force and the magnitude of displacement. Clear? A symbolic representation, that is W is equal to F into S. Clear? It means the factors affecting work. First, magnitude of the force applied on the body, F, and second, displacement gained by the body. Clear? आईसीसी बोर्ड वालों को ये माइंड में रखने होते हैं कि मीन्स फैक्टर्स क्या होते हैं जो फोर्स को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी इसका यूनिट वगैरह का डिस्कशन मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये भी लेते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स, here this one, force measure as Newton, displacement measure in meter, तो न्यूटन मीटर। क्लियर? न्यूटन मीटर और जस्ट जूल। here the SI unit of work is joule. Clear? CGS unit
सेंटीमीटर और आर्क, क्लियर, दिस सीजीएस. If the force, now the another condition, if the force is applied on the body by making an angle theta, when force is acting on a body by making an angle theta with s, क्लियर, कि बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है, ये देखो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो मीन्स वर्क कर, क्लियर, और डिस्प्लेसमेंट तो बॉडी में यही हो रहा है, क्या है डिस्प्लेसमेंट बॉडी में यही हो रहा है. ये तो सिंपल है कि मीन्स जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम, बट हियर द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी by making an angle theta with the direction of s. It means force acting on this direction and the body gets displacement in this direction. It means the angle between these two is theta. In that case, here we construct a right angle triangle, because ICC board syllabus is very advanced. Here each and everyone know about the trigonometry concept. In that case, if you apply this trigonometry concept here, we get cos of theta is equal to base. Suppose this one is C and this one D. In that case, cos of theta is equal to base AD upon hypotenuse, that is F. So here we will get AD is equal to, it means force can be resolved into components. Here suppose this one be represented by F1 and this one be represented by F2, either this or this. In that case we will write this one as F1 over F. In that case F1 will be F cos of theta, clear. Then work done, because the force acting on this body is along AC, but body is moving along AB. So according to definition of work done, the work done will be F1 into S. Here the F1 is F cos theta into S. It means Fs cos theta, clear. Here the W work done is Fs cos theta. क्लियर. अब देखो ये क्लियर है कि मीन्स cos थीटा. अब आपके माइंड में ऐसे होगा सर आपने cos थीटा अप्लाई किया, साइन क्यों नहीं अप्लाई किया. अब साइन का देखो, साइन का केस देखें, क्योंकि बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट आया ना, बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो किसके अलोंग है, वर्क उसी केस में काउंट होगा जब मीन्स क्या होगा. लेकिन फोर्स इस पे इधर भी वर्क कर रहा है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उधर नहीं हो रहा है, इसलिए वर्क डन वहाँ क्या हो गया, जीरो हो गया. किधर, जहाँ पे F2 आपने दिखा रखा है, ठीक है. तो क्लियर करो कि यहाँ पे फोर्स जो है आपका कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो गया. इसको बोलते मीन्स क्या, फोर्स मतलब टू पार्ट में डिवाइड हो गया. मैं उसका एग्जाम्पल भी आपको दूंगा, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो मीन्स है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज दिस, कि मीन्स व्हेन वी आर पुशिंग और पुलिंग द रोलर, क्लियर. क्रिकेट मैच तो खेलते हैं सब आजकल जो मीन्स, ठीक है. क्रिकेट में जो रोलर जो मीन्स आता था, अभी तो मीन्स क्या आती है, गाड़ी जो मीन्स आती है उसके नीचे वाइट जो मीन्स क्या है, टायर जो मीन्स लगे होते हैं, उसको रोल कराते हैं किसके ऊपर, पिच के ऊपर. लेकिन एंशिएंट जो मीन्स पहले टाइम में क्या होता था कि मीन्स एक रोलर जो मीन्स जैसे होता है ना आपका
एक्चुअली जो रोड रोलर जो मीन्स होता है उसके टायर देखो मीन्स आयरन के होते हैं, बहुत वाइड जो मीन्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो मीन्स क्या है उस पर जो मीन्स क्या है एक वायर, वायर तो नहीं बोलेंगे उसको, जो मीन्स क्या है एक लॉन्ग जो मीन्स आयरन रॉड लगी रहती थी और उसको रोल करते थे पिच के ऊपर, ठीक है। तो पिच फिर क्या हो जाता था, जो कहीं इधर उधर जो मीन्स क्या है उसमें डस्ट उड़ रही है वो तो मीन्स क्या है सेटल हो जाती थी उसमें, ठीक है। तो मैं उसी की जो मीन्स बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो मीन्स उसको भी आप क्लियर कर सकते हो कि मीन्स क्या, विच वन इज ईजियर, आइदर पुशिंग द रोलर और पुलिंग द रोलर। तो वो इस कॉन्सेप्ट को मतलब इस कॉन्सेप्ट से आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्या इस कॉन्सेप्ट से आप उसको क्या कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड जो मीन्स कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे वो भी मैं आता हूँ उस पर, ठीक है। लेकिन ये कह रहा हूँ मैं कि मीन्स ये समझने में बहुत हेल्प जो मीन्सफुल है, ठीक है। इसकी हेल्प से आप उसको इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं जल्दी से उसका एग्जांपल आपको बताऊं, फिर जो मीन्स बात करेंगे कि मीन्स वर्क डन, हाउ द वर्क डन मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, क्या। तो यहाँ पे जो मीन्स क्या, मैं ये भी जो मीन्स लिख दूं कि वर्क डन, वर्क डन मे बी फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव और थर्ड जीरो, ठीक है। वर्क डन क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो जो मीन्स हो सकता है, ठीक। तो आपको पूछ देता है वो कि मीन्स गिव द एग्जांपल, ठीक है, इन विच केस द वर्क डन विल बी पॉजिटिव। क्लियर करो कि इस फॉर्मूले से भी समझाऊंगा वैसे भी समझाऊंगा कि वर्क डन जो पॉजिटिव कब होगा, कि व्हेन अ बॉडी गेट्स डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन, जैसे ये वाला केस था ना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ पे क्लियर करो एस और क्या, एस क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुए, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 0 देखो इसमें एफ और एस की डायरेक्शन सेम है, इट मींस थीटा इज इक्वल टू 0, एफ पैरेलल एस, ठीक है। कि जब एफ और एस जो है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो इन दैट केस वर्क डन विल बी पॉजिटिव। इट मींस व्हेन द फोर्स is in the same direction of the displacement of the body, in that case the work done will be positive. Clear? In which case the work done will be negative. मीन्स इसके और एग्जांपल जो मीन्स देना चाहते, एग्जांपल कैसे दोगे कि पॉजिटिव वर्क डन का, फ्रीली फॉलिंग ऑफ द बॉडी, क्या कि व्हेन द बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग, मतलब किसी बॉडी को अगर ऊपर से नीचे फेंकोगे तो मीन्स क्या होगा, ये वर्क डन, इस केस में जो वर्क डन होगा पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि देखो इसमें जो ग्रेविटेशनल जो मीन्स फोर्स है, क्या इसमें फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी वर्क कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट ये भी क्या हो रहा है, डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, मतलब बॉडी जो है डाउनवर्ड वर्क मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो फोर्स है यहाँ पे ये क्या है, ये उसी डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क डन का एग्जांपल क्या है, फ्रीली फॉलिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी अगर फ्रीली फॉल कर रही है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो नेगेटिव वर्क डन अगेन समझ लो, क्योंकि देखो किसी भी बॉडी पे जो फोर्स वर्क करता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड करता है ना, ग्रेविटी जो वर्क कर रही है वो वर्टिकल डाउनवर्ड वर्क कर रही है, और अगर मैं बॉडी को अपवर्ड थ्रो करूंगा तो क्या होगा, इन दैट केस द वर्क डन इन दिस केस विल बी नेगेटिव। इट मीन्स if theta is 180, theta is equal to 180, it means f is anti-parallel, एक दूसरे के क्या है, अगेंस्ट है, कि डिस्प्लेसमेंट इधर और मीन्स क्या, फोर्स उसके अगेंस्ट मीन्स है, तो इन दैट केस द वर्क डन विल बी नेगेटिव। क्लियर? तो वर्क डन नेगेटिव मीन्स कब होगा, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट मीन्स होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने एग्जांपल दे दिया कि क्या, कि इफ यू थ्रो अ बॉडी अगेंस्ट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट मीन्स क्या है फोर्स को अपवर्ड थ्रो करेंगे तो इन दैट केस द वर्क डन विल बी नेगेटिव, ठीक है। अदर जो मीन्स ऐसे कि मीन्स क्या, कि वर्क डन अंडर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अंडर जो वर्क डन हो रहा है वो भी नेगेटिव जो मीन्स है। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल है। अब जीरो वर्क डन का एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है, नेगेटिव वर्क डन का क्लियर हो गया ना, कि नेगेटिव वर्क डन मींस यहीं पे जो इसको क्लियर करो कि बॉडी को जब आप अपवर्ड थ्रो करोगे, ठीक है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या हो रहा है, ग्रेविटी तो डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, फोर्स अपवर्ड वर्क कर रहा है, ठीक है। और इसमें जो मींस फोर्स भी डाउनवर्ड वर्क कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, दोनों केसेस में क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों ही डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक। ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन का। जीरो वर्क डन क्या हुआ, जीरो वर्क डन देखो क्या हुआ, अच्छा इसका एक और भी मीन्स एग्जांपल जीरो डी वर्क डन, अच्छा चलो
ठीक है, काफी है। जीरो वर्क डन का एग्जांपल ले लो। जीरो वर्क डन मींस गिवन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, एक तो इसका एग्जांपल ले लो, लेकिन एक ऐसा एग्जांपल देखो कि मीन्स क्या कि कुली होल्ड अ लगेज एंड मूविंग ऑन द हॉरिजेंटल ट्रैक या हॉरिजेंटल रोड। ठीक है, कि कुली ने जो मीन्स क्या है लगेज जो है मीन्स होल्ड कर रखा है और क्या कर रहा है वो हॉरिजेंटली जो मीन्स मूव कर रहा है या रोड के ऊपर जो मीन्स मूव कर रहा है, तो मीन्स इन दैट केस द वर्क डन इज जीरो। उस केस में उसका वर्क डन क्या होगा, जीरो जो मीन्स है। कैसे, क्योंकि देखो वहां पे जो है थीटा इज इक्वल टू 90 हो रहा है कि कुली का मतलब एफ और किस एफ इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स है यानी कि जो लोड वर्क कर रहा है ना उसके ऊपर, जो उसने लगेज हैंडल कर रखा है, वो लगेज का जो वेट है और उसकी पूरी बॉडी का वेट वो वर्टिकल डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, और कुली कहाँ मूव कर रहा है, रोड के ऊपर मूव कर रहा है। तो इट मीन्स एंगल बिटवीन दीज टू मीन्स लोड ऑफ द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन दैट केस द वर्क डन विल बी जीरो। हियर यहाँ पे जब cos 0 डिग्री रखेंगे क्या cos 90 डिग्री रखोगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं करना। इट मीन्स यहाँ क्या क्या पता लगा आपको, ये पता लगा कि मीन्स क्या cos 0 डिग्री 1, cos 180 डिग्री -1, एंड हियर द cos 90 डिग्री इज जीरो। क्लियर। तो ये एग्जांपल जो मीन्स है यहाँ पे एंगल मैं आपको बता ही रहा हूँ। और मीन्स क्या कि कुली ने जो लगेज हैंडल कर रखा है उसने सर में वो रखा बॉक्स सपोज रखा है उसने एक हैवी बॉक्स, तो वो जो लोड उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड वर्क कर रहा है। वेट भी क्या होता है, फोर्स होता है, तो वेट उसका डाउनवर्ड वर्क कर रहा है और कुली हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो मीन्स कर रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स हियर द एंगल बिटवीन दीज टू इज 90, इन दैट केस द वर्क डन विल बी जीरो। क्लियर। तो वर्क डन मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, एंड learn these examples by heart. How work may be positive, negative or zero. Clear. So this one is all about work done. Clear. कि वर्क डन के बारे में जो मीन्स मैंने आपको जो समझाना था, ये जो मीन्स है इससे काफी जो मीन्स हो जाता है। यूनिट भी मैंने आपको डिस्कस कर दी कि वर्क डन की यूनिट जो मीन्स क्या है। ठीक है, अब जो है इस पर बात करेंगे क्या, एंगल का भी मैंने केस आपको ले लिया, उसमें ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम। ठीक है, तो मीन्स ये एक शॉर्टेस्ट वे है वर्क डन को समझने का। ठीक है, फिर आप जो मीन्स आते हैं किस पावर जो मीन्स क्या है, पावर पे। नाउ सेकंड टॉपिक इज पावर। हाउ टू डिफाइन पावर, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। हियर सिंपली रेट ऑफ डूइंग वर्क is called power. Clear. Power is equal to work upon time. Clear. In term of formula or P is equal to W upon T. Clear. यहाँ पे जो डिस्कस हो रहा है देखो, पावर को भी टू वे में डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जो सिंपल है ये मैकेनिकल पावर मैंने कहा है, ये मीन्स सिंपली क्या कि टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर में आएगा मीन्स क्या, एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंस इन पर यूनिट टाइम। और हियर दिस वन इज सिंपली क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो टाइम रेट भी अगर बोल सकते हो, कोई कंफ्यूजन भी मीन्स नहीं करना इसमें क्या कि इसको टाइम रेट, जनरली टाइम से ही मीनिंग उसका लगाते हैं, तो टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि टाइम डिवाइड में जो मीन्स है। क्लियर, कि टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। क्लियर। फॉर्मूला ऑफ पावर इज P इज इक्वल टू W अपॉन T। क्लियर। क्वांटिटी जो है मीन्स मैं जैसे वर्क का मैंने डिस्कस नहीं किया, वर्क जो क्या है स्केलर क्वांटिटी जो मीन्स होता है, पावर भी आपका क्या है स्केलर क्वांटिटी है, इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, इसका जो है ऐसा यूनिट है जूल पर कूलम और जस्ट वाट। क्लियर। और अदर यूनिट्स में सीजीएस, तो सीजीएस है तो मीन्स क्या, जूल का अर्ग हो गया। ठीक है, अर्ग पर जूल पर सेकंड, सॉरी ये अर्ग पर सेकंड। ठीक है, और क्या अदर यूनिट्स 1 मेगा वाट 10 to power 6 वाट।
मेगावाट 10 to power 9 watt. Clear? 1 horsepower 746 watt. क्लियर? तो अदर यूनिट्स जो मीन्स क्या है कुछ आ जाती हैं तो वही आती है, ठीक है? क्या अदर यूनिट्स जो आती हैं उनको भी माइंड में रखोगे, इसकी जो है जरूरत पड़ती है इसमें। फिर अदर जो है मीन्स एक और यूनिट इसमें आता है क्या, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, क्लियर? तो 1 किलोवाट आवर ये भी जो मीन्स उसको कर रहे हैं, ठीक है? नहीं 1 किलोवाट, सॉरी 1 किलोवाट ये पे लिख दो, 1 किलोवाट 10 to power 3 watt। क्लियर? तो पावर जो मीन्स आया, क्लियर, ठीक है? और क्वांटिटी, क्वांटिटी स्केलर, स्केलर मीन्स इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, दैट्स व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं होती पावर की, ठीक? ये तो ये जो है सिंपली जो मीन्स पावर का कॉन्सेप्ट जो मीन्स मैंने आपको दे दिया कि पावर इट मीन्स टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, पावर इज इक्वल टू W अपॉन टाइम, ठीक है? W अपॉन T, SI यूनिट इज जूल पर सेकेंड और जस्ट वाट, CS यूनिट इज अर्ग, क्या अर्ग पर सेकेंड, क्लियर? और अदर यूनिट्स 1 मेगावाट 10 to power 6 watt, 1 गीगावाट 10 to power 9 watt, 1 हॉर्स पावर 10 to power 746 watt और 1 किलोवाट 10 to power 3 watt, क्लियर? एंड दिस वन इज स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब देखो यहीं पे जो मीन्स क्या है, एनर्जी भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या एनर्जी क्या है? एनर्जी सिंपली कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। क्या कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, क्लियर? कि कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क सिंपली कॉल्ड एनर्जी, क्लियर? SI यूनिट, दिस वन इज जूल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है क्या, जूल एंड किलोवाट आवर, क्लियर? सिंस पावर इज इक्वल टू W अपॉन T, क्लियर? एंड W इज इक्वल टू पावर इंटू T, क्लियर? W इज इक्वल टू पावर इंटू T, ठीक है? तो हियर वर्क डन इज आल्सो, वर्क इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। हियर relation between kilowatt hour and joule, clear? This power in watt, clear? Time in hour, and this one be divided by 1000, in that case this is kilowatt hour. So 1 kilowatt hour is equal to 1000 watt into hour 60 into 60, कि 1 kilowatt hour is equal to 1000 watt, clear? into 60 into 60 second. 1 hour is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 second. So it is, when we multiply this, 6 6 are 36, and how many zero are there? 1 2 3 4 5. So here this one is 3.6 into 10 to the power 6. 1 2 3 4 5 and 6, clear? So 1 kilowatt is equal to
1 kilowatt hour is equal to this much joule. So this one is unit of energy also. Clear? And another unit of energy is electron volt. Clear? Other unit is electron volt. Electron volt means amount of work done in displacing electron. Clear? Amount of work done in amount of energy which is required to displace an electron. एक इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करने के लिए, तो क्लियर करना कि मीन्स क्या, एक और रिलेशन में यहाँ पे जो मीन्स दे दूँ, क्योंकि फिर जरूरत नहीं पड़ेगी अननेसेसरी वीडियो को जो मीन्स ज़्यादा लंबा खींचने की. ठीक है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV. क्लियर? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज 1.6 into 10 to power minus 19 joule. Clear? 1 electron volt is equal to, this one is unit of energy also. ठीक है, ये भी किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूनिट ऑफ एनर्जी. क्लियर? तो 1 electron volt means amount of work done या amount of energy which is required to move or remove or means to displace an electron. इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मीन्स याद रख सकते हैं यहाँ पे. क्लियर है? अदर जो मीन्स बाकी मैं चेक कर लेता हूँ कि आपके पास जो मीन्स और भी कुछ है, तो इतनी जो मीन्स क्या है फिर जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, 746 वाट आ गया. बाकी डिफरेंसेस आप जो मीन्स इजीली लिख दोगे. किलो वाट आवर आ गया, वाट आवर आ गया. ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिस्कस कर लिया मैंने. ठीक है, तो आई थिंक दिस वन इज ऑल अबाउट एनर्जी, वर्क डन एंड power. Clear? After that we will discuss some numericals or forms of energy. Clear? So in next video I will discuss types of energy or different forms of energy. Clear? So till then, bye bye. Thanks for watching.